Hello and Jai Hind everyone. In today's special episode, we are joined by an inspiring personality whose life is devoted to serve and the preservation of culture. With us is Sri Maling Gombu, a social worker and lawyer from Tawang, Arunachal Pradesh. He is the General Secretary of the Indian Himalayan Council of Nalanda Buddhist tradition, where his mission is to bring standardization in education across Buddhist monasteries by blending traditional teaching with modern learning. His work goes beyond education. He is dedicated to strengthening Indian Buddhist identity and safeguarding the spiritual, cultural, and educational heritage of Monpa community and other Himalayan societies. Though his effort, Sri Maling Gombu continues to inspire the younger generation to take pride their roots, value their tradition, and carry them forward. So let's begin this insightful journey with Sri Maling Gombu. So welcome to the Voice of Kinnaur. नमस्कार रक्षा जी और वॉइस ऑफ किन्नौर. Thank you, sir. So to begin with, Buddhism originated in India and later spread into Tibet. Could you share with us how this migration of Buddhist thought and practice took place and what role Indian masters played in the shaping Tibetan Buddhism? Buddhism, came in the 500 around 63 to 480 BC, and it was a revolutionary, philosophy at that point of time in the later Vedic period time. Okay. And then as Buddhism, developed in India, then it later on, spread to Tibetan and other places. All right. So what we are focusing here is on the spread of Buddhism from India to Tibet. There was the famous Nalanda University, which produced a great number of masters. So it was in the 8th century during the time of King Trisong Dujin, who was the king in Tibet, who invited the Buddhist master from India, Acharya Shantarakshita, in the 8th century. So that was the first time when, Buddhism spread, went from India to Tibet. And then, Tibet at that point of time was, having the nature worship, the Bon practice was prevalent in Tibetan region. So with the coming of Shantarakshita into Tibet, that was and then later followed by Guru Padmasambhava. So that began, the transmission of the Buddhist philosophy in the Tibetan plateau. Okay. That was during the 8th century, and then it was because in the after the great diffusion in the 8th century, it was in 9th century that in Tibet, the King Langdharma's tenure came, who assassinated his brother, King Lalpachan. And then there was a huge destruction of Buddhism in Tibet. So after that, we see the movement of other great masters from India, like Nagarjuna went to Tibet in the 2nd century, and then you have the great master Vasubandhu, scholar who moved to Tibet in the 3rd century, and then we have the another great master Atisha, who went to Tibet in the 11th century, and then as per the history, the last Buddhist master who visited Tibet was in the 13th century. All right. That was Sakya Sribhadra, who was also known as Kachi Panjin, and then he was from Kashmir. Okay. So 13th century is the time when in India, Buddhism was destroyed by the great campaigns of, king like Bakhtiyar Khilji. Yeah. So that was the time when we are looking about the Mughal times. So that made, Sakya Sribhadra from the Kashmir region to flee to Tibet and then to spread the Buddhism in Tibet. So these are the diffusion of Buddhism that happened from India over a long period of time. Okay. So Tibetan Buddhism has many schools and tradition. How do they trace their philosophical roots back to Indian masters and text? ये जो हम आज बुद्धिज्म की बात करते हैं, तो हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि जो टिबेटन बुद्धिज्म के नाम पे आज दुनिया में एक तरह से प्रचलन है, तो वो जो है वो नालंदा बुद्धिज्म है, क्योंकि ये सारा चीज जो है वो इंडिया से ही आया है और ये नालंदा ट्रेडिशन है जो तिब्बत में जाके डेवलप हुआ है. एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये नालंदा ट्रेडिशन का जो बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट मास्टर्स लोगों ने वहाँ पे किया, तो एक बुद्धिज्म का खासियत ये था कि ये जहाँ भी बुद्धिज्म जिस जगह जिस देश में भी गया, तो वहाँ का
it got integrated with the local beliefs. तो तिब्बत में भी मैं जैसे बोल रहा था कि बौद्ध की प्रथा था सारा तिब्बत। आप ज़ांगजुंग सिविलाइजेशन ये सब का देखेंगे तो बौद्ध धर्म का पहले वहां पर भी जो है नेचर वर्शिप, जो बौद्ध रिलीजन के नाम से आज जानते हैं, तो उसका प्रैक्टिस चलता था। तो उनका अपना लोकल बिलीफ था। तो बुद्धिज्म ने, बुद्धिस्ट के बहुत से प्रैक्टिसेस जो है वो लोकल बिलीफ से ही इंटीग्रेट हो गया। तो उसके कारण से फिर बुद्धिज्म का जो प्रचलन भी काफी हुआ, it got developed more. And then if you see the history also, when Guru Padmasambhava went to Tibet, all across the Himalayan region, right from Tawang area in the eastern Himalayas to the western Himalayas of Ladakh, Himachal, and all these places, you have the history of Guru Padmasambhava traveling to Tibet, and then his holy and pilgrimage sites are there all over across the Himalayan region. Okay. No, there when he was moving to Tibet, there was a lot of obstruction by the local deities. So he tamed all these local evil deities and then made them the protector of dharma. अच्छा. तो इससे क्या हुआ कि अब वो जब बोले कि आपके जो डेटी आप जो मानते थे लोकल लोग जो है वो जो है अब बौद्ध धर्म का ही जो प्रोटेक्टर बन गया है। तो लोकल लोगों को इससे बुद्धिज्म के साथ में इंटीग्रेट होने में भी जो है मेरे ख्याल से काफी आसानी हुआ आज बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ये एक ऐसा फिलोसॉफी है जो जिसका प्रोटेक्शन उनका ही डेटी जो उनको पहले वो वर्शिप करते थे। तो वो उनका ही प्रोटेक्टर हो गया। ये तो इस प्रकार से बुद्धिज्म इंटीग्रेटेड विद द लोकल बिलीफ एंड ट्रेडिशंस वेरेवर इट वेंट, बी इट इन तिब्बत, बी इट इन जापान, कोरिया एंड अदर प्लेसेस, बी इट इन चाइना आल्सो। तो दैट वाज द स्पेशलिटी ऑफ बुद्धिज्म। तो ये इस प्रकार से जो अभी तिब्बतन में जो 4 ट्रेडिशंस डेवलप हुआ, जो ये नालंदा बुद्धिज्म में तो नहीं था, लेकिन अब जो है सबसे पहले जो है वो ट्रेडिशन जो पुराना मानते हैं गुरु रिम्पोचे के टाइम से, जो न्युंगमा ट्रेडिशन मानते हैं, मतलब जो तांत्रिक ट्रांसमिशंस का न्युंगमा ट्रेडिशन सबसे पुराना ट्रेडिशन है। तो उसके बाद में जो है कग्यू ट्रेडिशन हुआ। कग्यू ट्रेडिशन जो है वो जो है वो हमारे इंडिया से ही जो मास्टर्स थे, जो तिलोपा एक ग्रेट मास्टर थे, तो उन्होंने अपने जो शिष्य है उनका नारोपा जो मानते हैं, तो वो भी नालोपा और तिलोपा और नारोपा जो दोनों जो है इंडियन पंडित्स थे। तो बाद में नारोपा ने वो मारपा करके जो एक टिबेटन स्कॉलर था उनको शिक्षा दिया। उसके बाद में मारपा से वो ट्रेडिशन जो है मिलारेपा को पास होता है। तो ये सारे जो ट्रेडिशन जो हुआ है वो 10th और 11th सेंचुरी में तिब्बत में डेवलप हुआ और उसी से जो है कग्यू ट्रेडिशन बना। तो आप कग्यू ट्रेडिशन में देखेंगे और भी छोटे छोटे और डिविजन्स है, लेकिन मेनली एक कग्यू ट्रेडिशन को जैसे हिज होलीनेस कर्मापा जो कग्यू ट्रेडिशन से आते हैं, फिर ड्रुकजेन रिम्पोचे जी हैं वो कग्यू ट्रेडिशन से आते हैं, ट्रिकुंग कग्यू जो है वो कग्यू ट्रेडिशन। तो इस प्रकार से कग्यू ट्रेडिशन है। तो उसके बाद में फिर दूसरा जो ट्रेडिशन एक पुराना डेवलप हुआ था वो है साख्या ट्रेडिशन जो है। तो हम इसको सेक्ट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं ट्रेडिशन, बिकॉज सेक्ट इज ए इंग्लिश यो उनका जो फिलोसॉफिकल के तरफ से, लेकिन हमारा ये सेक्टेरियन नहीं है, इट इज ए ट्रेडिशंस, डिफरेंट पाथ्स ऑफ नॉलेज साख्या। तो उस प्रकार से साख्या ट्रेडिशन जो है वो हम देखेंगे तो 11th सेंचुरी में डेवलप होता है। तो वो तिब्बत में जो एक कोनचोक ग्याल्पो करके एक कोन फैमिली का एक राजा होता है, तो उनके वहां से ये फैमिली लिनेज के तरफ में डेवलप हो गया। तो साख्या ट्रेडिशन में हम देखेंगे कि ये एक फैमिली लिनेज हो गया, क्योंकि साख्या का जो फैमिली है वो फिर नेक्स्ट उनका रीइंकार्नेशन का वो नहीं करते हैं। तो पिताजी साख्या ट्रेडिशन है तो उनका बच्चा जो है वो नेक्स्ट फॉलोअर नेक्स्ट उसको आगे कैरी करेगा। तो साख्या ट्रेडिशन इंटरेस्टिंग कि एक फैमिली लिनेज का एक ट्रेडिशन हो गया। तो साख्या पंडिता करके भी बहुत महान स्कॉलर थे। एक समय तिब्बत में साख्या लोगों ने भी राज किया है विद द सपोर्ट ऑफ मंगोलिया, मंगोल्स के साथ में। तो उसके बाद में जो लेटेस्ट ट्रेडिशन डेवलप हुआ तिब्बत में वो है गेलुक ट्रेडिशन। तो ये गेलुक ट्रेडिशन जो है इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सूत्रास एंड तंत्रा, और एक रिफाइंड तरीके से ये लेट जो है अराउंड 14th-15th सेंचुरी में डेवलप हुआ। वो जो है ये सोंगपा जो है वो बहुत बड़े ग्रेट मास्टर थे सोंगपा।
तो उन्होंने ये जो है पहले कादम ट्रेडिशन करके होता था, तो कादम्बा ट्रेडिशन से ही ये गेलुक ट्रेडिशन डेवलप हुआ। तो ये लगभग 14-15 सेंचुरी में डेवलप हुआ, और ये थोंकापा जो है इनका फर्स्ट लिनेज इनके यहाँ से शुरू होता है। और आज जो गेलुक ट्रेडिशन जो है वो बाद में चल के आपको इतिहास को देखेंगे तो तिब्बत में भी जो है 5th दलाई लामा के समय से जो गेलुक ट्रेडिशन का वहां पर डोमिनेंस हुआ। एंड देन 5th दलाई लामा का पीरियड इज द टाइम when the spiritual and the temporal power of the Tibet went to the hands of the 5th Dalai Lama. So वहां से ही spiritual और temporal दोनों पावर को लेते हुए आज 14 दलाई लामा तक जो है ये परंपरा तिब्बत में चला। और अब हमारे 14 दलाई लामा जो हमारे साथ इंडिया में हैं, तो उन्होंने अब जो है वो टेम्पोरल पावर को उन्होंने त्याग दिया है। और he has now confined himself only with the spiritual जो ट्रेडिशन उनका रोल है। तो ये जो है प्रथा जो है वो गेलुक ट्रेडिशन का वो चला तिब्बत में दलाई लामा के समय से, और ये अभी यहाँ 14 में आके खत्म हुआ। तो ये जो है गेलुक ट्रेडिशन है। तो गेलुक ट्रेडिशन का आप देखेंगे तिब्बत में भी जो फेमस जो 3 मोना यूनिवर्सिटीज माने जाते थे वो है गंदन हो गया और सेरा हो गया और ड्रेपुंग। तो ये 3 बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के रूप में तिब्बत में डेवलप हुआ, जिनका ये मोनास्ट्रीज का इवेंट जो है गवर्नेंस में भी उनका जो कोर कमेटी में उनका भी रोल होता था। तो इस प्रकार से ये 4 ट्रेडिशन जो है वो तिब्बत में खासकर डेवलप हुआ। और इसका फिर जो है इसका जो प्रभाव जो है फिर हमारे हिमालयन रीजन में भी पड़ा, क्योंकि हमारा हिमालयन रीजन जब किन्नौर हो गया, हिमालय लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल के कुछ पार्ट्स है, तो ये सब तिब्बतन के साथ में कल्चरली पहले से जुड़े हुए थे। तो हमारे जो जिस प्रकार से बुद्धिज्म इंडिया से गया, फिर बाद में तिब्बत में बुद्धिज्म, नालंदा बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ, फिर उसका असर जो है उनका प्रचार जो है हमारे हिमालयन क्षेत्र के लोगों में भी एक संस्कृति को लेके हुआ। तो इस प्रकार से ये जो है ट्रेडिशन डेवलप हुआ। दिस इज ए फर्दर एलाबोरेशन ऑफ द नालंदा ट्रेडिशन जो नालंदा से गया, तो वो जाके तिब्बत में इस प्रकार से जो 4 मेन ट्रेडिशंस में डेवलप हुआ है। ओके, इट्स रियली इन्फॉर्मेटिव सर। ये जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला, इनका क्या रोल रहा है, इन्होंने क्या रोल प्ले किया है टू शेप तिब्बतन बुद्धिज्म? कुड यू टेल अस मोर अबाउट देयर सिग्निफिकेंस एंड इन्फ्लुएंसेस तिब्बतन मोनास्टिक ट्रेडिशंस? यस, नालंदा यूनिवर्सिटी एंड देन विक्रमशिला, टू सम एक्सटेंट तक्षशिला आल्सो। हम इतिहास में देखेंगे तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय में, उस जमाने में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्ली 5th सेंचुरी व्हेन इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। यस। तो गुप्ता के बहुत बड़े एम्परर थे, कुमारा गुप्ता फर्स्ट। तो उनके टाइम पे इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को शुरू किया और उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को डेवलप हुआ। मगर उस जमाने में आप सोचिए वहाँ सब स्ट्रीम्स, बुद्धिज्म तो था ही था, साइंस, मैथ, सभी स्ट्रीम्स का अध्ययन होता था और दुनिया भर से जो है लोग आते थे। अब चाइनीज का हो गया और भी जो भी था। तो ये नालंदा वाज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। अब इतिहास को हम देखेंगे, नालंदा की जो गरिमा है, उनका जो महिमा है जी, इट इज ए ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, ए यूनिवर्सिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ए हिस्टोरिकल, जो दुनिया में इस प्रकार का यूनिवर्सिटी नहीं रहा होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारी जो भारत की जो नॉलेज है उसका हमें दुनिया में एक झलक दिखाता है। तो उसी नालंदा में बुद्धिज्म को लेके काफी अध्ययन हुआ। तो जैसे मैं बता रहा था कि शांताराक्षिता was also one of the vice chancellors of the Nalanda University। अब जो है किंग ट्रिसोंग रीजन जो है जब तिब्बत में था, तो वहां पे उनको पहले से बुद्धिज्म का कुछ ज्ञान हुआ, तो वो चाहते थे कि हम बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का हम जो है डेवलप करें तिब्बत में। क्योंकि आपको इतिहास में देखे तो बुद्धिज्म जो है तिब्बत में तो 8th सेंचुरी 7th सेंचुरी में बाद में किया, लेकिन बुद्धिज्म चाइना में पहले ही चले गए, ट्रैवल टू चाइना। तो उसका कुछ इम्पैक्ट तिब्बत में भी हुआ। लेकिन अब बुद्धिज्म चाइना में भी चला गया था, चाइना में बुद्धिज्म था, लेकिन तिब्बत के लोगों ने चाइना से बुद्धिज्म नहीं लिया। उन्होंने भारत भूमि है, जो पुण्य भूमि जहाँ पर बौद्ध धर्म का जो है वो जो जन्म हुआ है, तो वहीं से उन्होंने लिया। तो उन्होंने
मोनास्ट्री बनाने के लिए कोशिश किया, तो साम्य मोनास्ट्री करके जो शुरू हुआ तिब्बत में, जो वेस्टर्न रीजन ऑफ तिब्बत होता है, ये शनम प्रोविंस जो आपका हिमाचल हो गया, लद्दाख, ये सब जो बॉर्डर करता है, जो शनम प्रोविंस जो तिब्बत के है, तो दैट वाज द फर्स्ट एरियाज ऑफ तिब्बतन सिविलाइजेशन। तो वहां पर ही जो है फर्स्ट किंग ऑफ जो है तिब्बत का, वहीं से वो राज शुरू करता है। तो दैट वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, शनम प्रोविंस जो है, जो लोका भी प्रोविंस बोलते हैं, तो वो इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली। तो उसी से जो किन्नौर, हिमाचल और लद्दाख का जो है, वहाँ का जो है एक रिलेशन ज्योग्राफिकली जो एक एक्सेस था, तो उस प्रकार से भी वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी, शांतारक्षिता और साम्य मोनास्ट्री भी उसी प्रोविंस में है जी। तो साम्य मोनास्ट्री बना नहीं पा रहा था, तो उन्होंने शांतारक्षिता जी जो वहां पे थे, तो शांतारक्षिता जी ने बोला कि हमारे अभी नालंदा यूनिवर्सिटी में एक बहुत महासिद्ध जो है तांत्रिक प्रैक्टिशनर, एक सिद्धि प्राप्त गुरु पद्मा संभवा है, हमने उनको इनवाइट कर, आप उन्हें इनवाइट करिए तिब्बत में, तो ये ही आपका ये साम्य मोनास्ट्री को बना सके। तो फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार से गुरु रिम्पोचे जो है, गुरु पद्मा संभवा जो है, वो तिब्बत की तरफ नालंदा यूनिवर्सिटी से, वो नेपाल से होते हुए फिर हमारे हिमालयन रीजन, कुछ लोगों का कहना है कि वो किन्नौर के रीजन से भी गया, वहाँ पे मेडिटेट किया। एक नेत्सांग केव करके किन्नौर में है, जो बहुत प्रचलित है, जिसको गुरु रिम्पोचे से जोड़ते हैं, कि वहाँ उन्होंने मेडिटेट किया। तो वो जाके फिर तिब्बत में जाके वो साम्य मोनास्ट्री, जब वो जाते हैं हिमालय में तिब्बत की तरफ जाते हैं, तो काफी उनका मतलब उनको रोकने के लिए काफी जो है वो जो डेटिस होता है उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो कहानी है कि वो किस प्रकार से उनको टेम करते हुए आगे जाता है। तो फिर वो साम्य मोनास्ट्री जो दिन में खड़ा होता था, तो रात को सुबह होते हुए फिर सुबह पूरा खत्म हो जाता। तो उस प्रकार से कुछ इविल स्पिरिट्स का प्रभाव था, बन नहीं रहा था। तो उसको गुरु रिम्पोचे ने फिर सारे जो उनको टेम करके धर्मा प्रोटेक्टर बना के साम्य मोनास्ट्री, फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन तिब्बत का जो है वो निर्माण होता है। तो उस प्रकार से नालंदा यूनिवर्सिटी से ही सारे, उसके बाद में हम नागार्जुना की बात करें, अतीसा की बात करें, तो ये सारे नालंदा के ही प्रोडक्ट्स थे, नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए। तो इस प्रकार से नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसलिए हम जो है, जो बुद्धिज्म आज तिब्बत में है, जो बुद्धिज्म हम इंडिया में है, उसको नालंदा बुद्धिज्म के नाम पर भी प्रचलन करने के लिए लोगों के बीच में रख रहे हैं, क्योंकि नालंदा का ही जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वो आज हमारे भारत में है, दुनिया में है, और जहाँ जहाँ गया है थोड़ा बहुत उस प्रकार से लोकल बिलीफ के साथ में इंटीग्रेट हुआ है। जैसे जैन बुद्धिज्म हो गया, उधर अलग अलग है, लेकिन ये सारा जो है नालंदा बुद्धिज्म का ही प्रचलन है, उनका ही ज्ञान है जो दुनिया में और तिब्बत में जो है गया है। तो उस प्रकार से नालंदा और विक्रमशिला जो 8th और 12th सेंचुरी में पाला डायनास्टी के समय में हुआ, तो ये सब का काफी योगदान रहा हमारे भारतीय ज्ञान, बुद्धिस्ट फिलोसफी को दुनिया में फैलाने के लिए। सर, एक जगह मिंसार है जो तिब्बत में है, और पहले ये इंडियन रूल के अंडर हुआ करता था। आज भी इसका हिस्टोरिकल और कल्चर दोनों तरह काफी इम्पोर्टेंस है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिंसार इंडिया के लिए क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, और कैसे ये इंडिया और तिब्बत के शेयर्ड हेरिटेज को कनेक्ट करता है? मिंसार की जब हम बात करते हैं, मिंसार एक छोटा सा गाँव था माउंट कैलाश के सामने में, उसके नीचे में जो है। तो हमारी जो उस समय का जो इतिहास है, जो हमारा तिब्बत के साथ में है, हिमालयन रीजन हो गया, लद्दाख हो गया है, तो ये उस समय की बात है जब जो लद्दाख का अलग अपना एक किंगडम रहता है रीजन का। तो उनका कहानी है कि किस प्रकार से लद्दाख किंगडम जो जिग्मे संगे नंगल जो वहाँ के एक राजा हुआ करते थे, तो उसका फिर तिब्बत के साथ में रिलेशन। तो 5th दलाई लामा के जो समय है वो 17th सेंचुरी का है। तो हमारे तवांग में भी जो एक मोनास्ट्री बना है, दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। तो वो 5th दलाई लामा के समय में तवांग मोनास्ट्री जो 5th बना है। तो उसी प्रकार से 5th दलाई लामा के टाइम में ही जो तिब्बत और जो लद्दाख के किंगडम का रिलेशन था, उसको ध्यान में रखते हुए 5th दलाई लामा के समय जो मिंसर जो गांव था जी, इतिहास बताते हैं कि वो जो है लद्दाख के किंगडम को दिया था,
और लद्दाख के किंगडम को देख के फिर वो लद्दाख का उनका था कि वो जो है माउंट कैलाश में जो है उनका जो पूजा पाठ करना है उसको देखभाल करना। और जो है अब जैसे जो माउंट कैलाश जो है हम लोग जानते हैं कि हमारी फिलोसफी में जो है हम हिंदू हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन्स हो गया और बोन फॉलोवर्स हो गया, सभी लोग जो है माउंट कैलाश को अलग अलग रूप में पूजा और पूजन करते हैं। तो माउंट कैलाश उस प्रकार से बहुत पवित्र शिव का भी मानते हैं। तो उस प्रकार से सब लोगों का मानना था। तो उसके बाद में फिर लद्दाख जो है वो डोगरास के अंदर में आ गया, देन इट बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मिंसर जो है वो फिर इंडिया के साथ में एसोसिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक शेयर स्पिरिचुअल हेरिटेज की तरफ था। लेकिन फिर वो हमारे उस ध्यान में नहीं रहा। लेकिन आज वो फिर सब वो हमारे अंदर में नहीं है, वो अब तिब्बत के साथ में चला गया, जो आज चाइना के, चीन के अंदर में है। तो इसलिए मिंसर का जो हमारा कंट्रोल था वो इंडिया का, वो उस प्रकार से हिस्टोरिकली उस प्रकार से वो गायब हो गया। लेकिन मिंसर जो है इट स्टैंड्स एज ए रिमाइंडर ऑफ इंडिया तिब्बत's deep cultural and religious bonds, and then symbolizing how pilgrimage, faith and the history have long connected with the two regions. तो उस प्रकार से मिंसर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था कल्चरली भी। और आज भी जो माउंट कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो वो सब लोगों के लिए जो है एक बहुत स्पिरिचुअली कल्चरल हेरिटेज का ही रूप है। ओके। हम सबने सुना है कि इंडियन मास्टर्स जैसे पद्मसंभवा और शांत तारकसिता तिब्बत में बहुत ही लेजेंडरी रोल रहा है, लेकिन आज के समय में तिब्बतियंस उन्हें कैसे याद करते हैं? उनकी जगह तिब्बतन कल्चर और टीचिंग में कैसी है? परम पावन जी हमेशा भारत को अपना गुरु के रूप में देखता है। ओके। तो जिस प्रकार से तिब्बतन का जो संस्कृति आज तिब्बतन बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म जो है आज तिब्बत में प्रचलन है, और आज दुनिया के सामने तिब्बत का भी अपना एक सबसे स्ट्रॉन्ग अगर पॉइंट है तो वो बुद्धिज्म को लेके है। ओके। और बुद्धिज्म से जो शांति, कंपैशन, करुणा और मैत्री का जो संदेश दुनिया भर में जाता है जी, उसका रेलेवेंस आज 21st सेंचुरी में काफी महत्व और रखता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में अलग अलग स्तर पर जो है युद्ध अलग अलग जगहों में हो रहा है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का जो फिलॉसफी है उसका बहुत ही और महत्व हो जाता है कि हम किस प्रकार से करुणा, मैत्री और कंपैशन को दुनिया में और फैलाए, ताकि जो है एक हम जो है विश्व जो है ना वो कुटुंबकम के रूप में देखते हैं। तो शांति स्थापित होने के लिए तो बौद्ध धर्म का काफी जो है योगदान है। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से तिब्बत आज मानते हैं, और आज परम पावन जी और तिब्बतन कम्युनिटी भी जो है एक्साइल गवर्नमेंट जो है उनका हमारे धर्मशाला इंडिया में है। तो हमेशा जो है आज तिब्बतन लोग जो है तिब्बतन समाज में जो है गुरु रिम्पोचे और शांतानाक्षिता और नागार्जुना, अतिशा, ये सारे ग्रेट मास्टर्स को जो है काफी रेस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ में तिब्बतन लोग जो है अपने समाज में देखते हैं। और ये सारे जो इंडियन पंडित्स, मास्टर्स जो धर्म को लेके, बौद्ध धर्म को लेके तिब्बत में उन्होंने काम किया है, तो उनको वो अपने तिब्बतन नाम के साथ में भी बड़े बड़े गुरु ये सब के नाम से करके बहुत ही उनका तिब्बतन समाज में एक बहुत बड़ा उनको रेस्पेक्ट और समाज आदर जो है आज के समय में भी दिया जाता है। और आज भी जब हिज होलीनेस का अपना टीचिंग्स करते हैं तो वो नागार्जुना, अतिशा, इन सब के जो लोटस सूत्रा, ये सारे बुद्धिस्ट फिलोसफी जो इंडियन मास्टर से आया है उनका ही जिक्र करके दुनिया को संदेश देता है। तो इसलिए ये आचार्य चिता से शुरू होके गुरु पद्मसंभवा और जो ग्रेट मास्टर्स थे, जो 18 ग्रेट पंडितास ऑफ नालंदा का भी जो हिज होलीनेस जिक्र करते हैं, तो इनका भी काफी महत्व है। तो तिब्बतन समाज में हमारे इंडियन की तरफ और इंडियन मास्टर्स की तरफ जो है बहुत श्रद्धा और रेस्पेक्ट से देखते हैं। All right, as we come to the close of today's conversation, one thing is clear. Sri Malingombu's dedication is not just about the preserving traditions, but about creating a bridge between the wisdom of past and the needs of the present. His vision for education, culture, and identity in the Himalayan region is a reminder that true progress is achieved while we honor our roots while moving forward. We thank him for sharing his insights and inspiring us all to value our heritage with pride and responsibility. Until next time, this is RJ Raksha signing
signing off. Stay connected, stay inspired, stay tuned. 88.4 FM Voice of Kinnaur. Your land, your voice. Jai Hind.